الرحمن الرحیم لیسن نمبر 9 کائنڈس آف سینٹینس پارٹ 2 سبق نمبر 9 جملے کے اقسام حصہ 2۔ دوستو، پچھلے سبق میں ہم جملے کے اقسام سے واقف ہوئے، افرمیٹیو اور نیگیٹو کو جانا اور آخر میں سینٹینس کے 6 طریقوں کا علم حاصل کیا۔ آج کے اس ویڈیو میں انہی 6 طریقوں سے سینٹینس بنانے کے بارے میں بتایا جائے گا اور آگے انہیں اسی طرز اور پیٹرن پر سمپل سینٹینس اور ٹینس وغیرہ کے جملے بنائے جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے ان 6 طریقوں پر جملہ بنانا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک بار ان طریقوں کو پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1 افرمیٹیو یعنی مثبت، نمبر 2 نیگیٹو یعنی منفی، نمبر 3 انٹروگیٹو یعنی سوالیہ مثبت، نمبر 4 نیگیٹو انٹروگیٹو یعنی سوالیہ منفی، نمبر 5 انٹروگیٹو وتھ WH فیملی، مثبت سوالیہ WH فیملی کے ساتھ، نمبر 6 نیگیٹو انٹروگیٹو وتھ WH فیملی، منفی سوالیہ WH فیملی کے ساتھ۔ پہلا طریقہ ہے افرمیٹیو یعنی مثبت۔ اس کی تعریف ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ایسا سینٹینس جس میں نہ نفی یعنی نوٹ کا استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا گیا، دو چیزیں، نہ نوٹ کا استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا گیا ہو۔ جیسے زید ایک طبیب ہے، اردو میں اگر ہمیں کہنا ہو زید ایک طبیب ہے، یہ جملہ مثبت بھی ہے اور اس میں کوئی سوال بھی نہیں ہے، یعنی اس میں نوٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، مثبت ہے اور اس میں کوئی سوال بھی پوچھا نہیں گیا۔ اس کو انگلش میں اس طرح بنائیں گے، ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگائیں گے، پھر کوئی اور چیز آگے لگائیں گے، سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب اور پھر آگے دوسری چیزیں۔ اب جملہ بناتے ہیں، اس میں سبجیکٹ ہے زید، جملہ ہمارا ہے زید ایک طبیب ہے یعنی ڈاکٹر ہے، تو سبجیکٹ ہے اس میں زید۔ اب ہیلپنگ ورب کیا آئے گا؟ زید تو ہم نے لکھ دیا، اب ہیلپنگ ورب کیا آئے گا؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہے، ہوں اور ہے کے لیے 3 ہیلپنگ ورب آتے ہیں، ایم، آر، از، 3 ہیلپنگ ورب آتے ہیں۔ ایم تو ہمیشہ آئی کے ساتھ لگتا ہے، آر جمع یعنی پلورل کے ساتھ لگتا ہے، اور از واحد یعنی سنگولر کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہاں پر زید یہ ایک ہے یعنی سنگولر ہے، تو زید کے ساتھ از لگ جائے گا، زید چونکہ سنگولر یعنی واحد ہے اس لیے زید کے ساتھ از لگ جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے سبجیکٹ لکھ دیا ہے زید، اب اس کے بعد ہمیں ہیلپنگ ورب لگانا ہے، اور چونکہ زید واحد یعنی سنگولر ہے اور سنگولر کے ساتھ جو ہیلپنگ ورب آتا ہے وہ از آتا ہے، لہٰذا اب ہم یہاں پر از لکھ دیں گے۔ آگے ہے ایک طبیب، زید ایک طبیب ہے، تو اب ہمیں ایک طبیب کا بنانا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ ایک کا معنی ادا کرنے کے لیے 2 ورڈز آتے ہیں، اے اور این، اور یہ بھی بتایا تھا کہ این اس ورڈز کے شروع میں لگتا ہے جس کے شروع میں واول کی آواز ہو، تو یہاں ایک طبیب لکھنا ہے، اور طبیب کے لیے انگلش ورڈ ہے ڈاکٹر، اور اس لفظ کے شروع میں، ڈاکٹر کے شروع میں واول کی آواز نہیں ہے، ڈاکٹر ڈی کی آواز ہے، ڈا کی آواز ہے، واول کی آواز نہیں ہے، لہٰذا اس کے شروع میں اے لگائیں گے یعنی ا ڈاکٹر۔ تو اب سینٹینس ہو جائے گا، پہلے ہم نے لکھا تھا زید از، اب ہمیں لکھ لینا، آگے بڑھا دینا ا ڈاکٹر، تو پورا جملہ ہو جائے گا زید از ا ڈاکٹر، زید ایک طبیب ہے۔ لیجئے جملہ تیار ہو گیا۔ دوسری مثال دیکھیے، اردو میں ہے طلبہ حاضر ہیں، طلبہ حاضر ہیں، اسے ہمیں بنانا ہے۔ اس میں دیکھیے سبجیکٹ ہے طلبہ یہ سبجیکٹ ہے، اور یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے، ایک سے زائد طلبہ یعنی ایک سے زائد طالب علم کو کہتے ہیں، لہٰذا اس کی انگریزی ہوگی، سب سے پہلے ہم
बनाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, तलबा की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। चूंकि ये प्लूरल है यानी जमा है, एक से ज्यादा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी इसका प्लूरल वाला आएगा, और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है आर, जैसा कि अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया कि प्लूरल के लिए आर आता है। लिहाजा हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो आर लिख देंगे, तो अब हो जाएगा जुमला स्टूडेंट्स आर। इतनी बात हो गई। आगे बात है हाजिर है, तो स्टूडेंट्स आर लिख दिया। अब हाजिर होने के लिए क्या है, तो हाजिर के लिए अंग्रेजी आती है प्रेजेंट, हम इसे आखिर में लिख देंगे और जुमला हो जाएगा स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी तलबा हाजिर हैं। ये लीजिए बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से मुस्बत जुमला यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। अगर इसे अच्छे से आप समझ गए तो आगे जुमला सारा का सारा आसान है, लिहाजा खूब तवज्जो दें और अच्छे से समझ लें। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी। इसके बारे में इसकी तारीफ हमने बताया था कि ऐसा जुमला को कहते हैं जिसमें नहीं यानी नोट का इस्तेमाल किया गया हो लेकिन कोई सवाल न पूछा गया हो। नोट यानी नहीं का इस्तेमाल तो किया गया हो लेकिन कोई सवाल न हो। जुमले की तरतीब यूं होगी, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नोट लगाया जाएगा। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नोट लगाया जाएगा, फिर आगे दूसरी बातें लिखेंगे। अगर आप पहला तरीका समझ गए हैं तो इस दूसरे वाले को बनाना बहुत ही आसान है। करना कुछ नहीं है, बस पहले वाले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ लफ्ज नोट बढ़ा देना है। जैसे पहली मिसाल थी जैद एक तबीब है यानी एक डॉक्टर है, लेकिन अब हमें बनाना है कि जैद एक तबीब नहीं है। पहले वाली की अंग्रेजी हमने बनाई थी जैद इज अ डॉक्टर, जैद इज अ डॉक्टर। इसमें इज एक हेल्पिंग वर्ब है, बस इसके फौरन बाद हम नोट बढ़ा देंगे और जुमला तैयार है। ये देखिए जैद इज नॉट अ डॉक्टर, जैद इज अ डॉक्टर पहले से था, इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमने नोट बढ़ा दिया तो हो गया जैद इज नॉट अ डॉक्टर, जैद एक तबीब नहीं है। इसी तरह दूसरी मिसाल थी तलबा हाजिर है, हमने उसकी अंग्रेजी बनाई थी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, लेकिन अब हमें ये जुमला बनाना है कि तलबा हाजिर नहीं है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ा देंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब है आर, हम उसके आगे नोट बढ़ा देंगे तो जुमला इस तरह हो जाएगा स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, तलबा हाजिर नहीं है। कितना आसान है। तीसरा तरीका है सवालिया मुस्बत यानी इंट्रोगेटिव, सवालिया मुस्बत। इसके बारे में हमने बताया था कि एक ऐसा जुमला जिसमें सवाल तो पूछा गया हो, चूंकि सवालिया है सवाल पूछा गया लेकिन मुस्बत हो यानी नहीं का इस्तेमाल ना किया गया, नहीं यानी नोट का इस्तेमाल इसमें ना किया गया, सवाल हो लेकिन नोट का इस्तेमाल ना हो। जुमले की तरतीब यूं होगी, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर दूसरी चीज। इसमें जुमले की तरतीब बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, बदल जाएगी पहले वाले से। पहले में यह था कि पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर दूसरी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरी चीजें होंगी। जैसे हमारा सबसे पहला जुमला था कि जैद एक तबीब है, पहले जुमले से लेते जो हमने पहले में बनाया अफर्मेटिव में, जैद एक तबीब है। अब उसको हमें सवालिया बनाना है, क्वेश्चन वाला बनाना है और नहीं का इस्तेमाल भी नहीं करना उसमें। तो इस तरह बनेगा, क्या जैद एक तबीब है, जैद एक तबीब है पहले था, अब हमें उसे सवालिया बनाना है, मुस्बत बनाना है, वो भी अफर्मेटिव। तो होगा क्या जैद एक तबीब है। अब देखिए इसमें सवाल पूछा गया है और नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी मुस्बत सवालिया है। अब जानते हैं कि इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत आसान है। कैसे? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आया था और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट उसके बाद। जैसे पहली मिसाल की अंग्रेजी हमने बनाई थी जैद इज अ डॉक्टर, जैद एक तबीब है। अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लिखेंगे
सबसे पहले उसे हेल्पिंग वर्ब को ही लिखेंगे और जैद जो सब्जेक्ट है उससे उसके बाद लिखेंगे। तो सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, जैद इज अ डॉक्टर से सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, इज जैद अ डॉक्टर, इज जैद अ डॉक्टर, क्या जैद एक तबीब है। देखिए जुमला बन गया। इसी तरह दूसरी मिसाल थी, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट यानी तलबा हाजिर हैं। इसमें आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लिखेंगे और स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है उसे बाद में। तो जुमला इस तरह हो जाएगा इंट्रोगेटिव का, आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट, आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट, क्या तलबा हाजिर हैं। जैसे ही हमने सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को पहले किया और सब्जेक्ट को बाद में किया, फौरन ये सवालिया बन गया। और सवालिया बनाने का यही तरीका है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको बाद में कर देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देते हैं, सवालिया हो जाता है, क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब तर्जमा हो जाएगा, क्या तलबा हाजिर हैं। इन सबको अच्छे से याद रहे। सवालिया जुमला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके आखिर में हमेशा सवालिया निशान होता है, यानी क्वेश्चन मार्क, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमेशा लगता है। ये इस बात की अलामत है कि जुमला सवालिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे लगाना जरूरी है, लिहाजा इसे अच्छी तरह समझ ले और याद। आज के लिए इतना ही काफी है, बकिया अगले सबक में। आज के सवालात, सवाल नंबर 1, नीचे 4 जुमले हैं, 4 जुमले दिए जा रहे हैं, उनमें से हर एक के 3-3 जुमले बनाकर लाइए, जो हमने अभी अभी आपको बताया है। 3 तरह के जुमले बनाने सिखाए हैं, तो सबका पहला बना दिया गया है, बस आपको 2 और बनाना है। 3 हमने बताया था, उनमें से पहला हमने बना दिया है, बाकी आगे के 2 आपको बनाकर लाने हैं। जुमला है, आमिर इज एन इंजीनियर, आमिर एक इंजीनियर है, ये पहला जुमला हुआ। इसके 2 जुमले और बनाने हैं कि आमिर एक इंजीनियर नहीं है, क्या आमिर एक इंजीनियर है। इसी तरह पीपल आर रिच, लोग अमीर हैं, इसके भी 2 जुमले और बनाने हैं। आई एम एन आलिम, मैं एक आलिम हूँ। इसी तरह शाहिद इज फूल, शाहिद बेवकूफ है। तो हर एक के एक जुमले बना दिए गए हैं, आपको 2 और जो उनके बताए गए हैं वो हर एक के बना कर लाने हैं। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए उर्दू जुमले की अंग्रेजी बनाइए। तुम एक आलिम नहीं हो, क्या राशिद मदरसे में है, असातिज़ा मुशफिक है, क्या तुम मुस्लिम हो, मैं ज़हीन हूँ, वो लड़की खूबसूरत है। इनकी उर्दू बनाकर लाइए। अहम अल्फाज, रमज़ान क्रेसेंट, रमज़ान क्रेसेंट, रमज़ान का चांद, क्रेसेंट नए चांद को बोलते हैं, तो रमज़ान क्रेसेंट यानी रमज़ान का चांद। इसी तरह ईद क्रेसेंट, ईद का चांद। ब्लेसिड रमज़ान, इसे ब्लेस्ड नहीं पढ़ना बल्कि ब्लेसिड, ब्लेसिड, ब्लेसिड रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक यानी मुबारक रमज़ान। ब्रेकफास्ट मील, ब्रेकफास्ट मील, इफ्तारी। प्ले डाउन मील, प्ले डाउन मील या सुहूर मील, सहरी दोनों कह सकते हैं, प्री डाउन मील या फिर सुहूर मील। फास्ट रोज़ा, फास्ट रोज़ा। प्यूरिफाइंग ड्यू, ज़कात, ज़कात को ज़कात भी बोल सकते हैं, और प्यूरिफाइंग ड्यू, प्यूरिफाइंग ड्यू। प्रेयर, प्रेयर नमाज, दुआ और नमाजी तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, नमाज भी और नमाजी और दुआ तीनों के लिए। प्रेयर नमाज, नमाजी, दुआ। तरावीह सलाह, नमाज तरावीह। डेट, डेट खजूर। वमिसली, 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 वमिसली सवैयाँ, लच्छा सवैं जो खाते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट मीठा। Congratulations, it's Ramadan. Congratulations, it's Ramadan. रमज़ान मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो।